Hi everybody, welcome back to episode 3 of Inside the Block. सबसे पहले तो I'm just coming off of the Asian Indoor Championships जहाँ पे बहुत अच्छी performance रही, but in this video series we are not going to go and reflect on results क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि results is a byproduct of the process. So the whole idea of starting this series was that we are going to try and focus on the process, identify those small things जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिलता है और जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर खराब परफॉर्म करते हैं. So the result is always just a blip in the grand scheme of things. So keeping that in mind, episode 1 में हमने कवर किया था कि सीजन को कैसे प्लान करना चाहिए, what are some of the variables that goes into planning a season. एपिसोड 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि इंटेंसिफिकेशन क्या होता है, accumulation क्या होता है, and how those things are important when you're planning the rest of your season. अभी since December all the way up until February, we've had some transitions come our way. Obviously February के महीने में हमें compete करना था, so we had to make some changes in our training plan which affected the outcome. So we couldn't be in base building and accumulation throughout the year, right? So we have to make some changes into our training plan. तो उस ट्रेनिंग प्लान में जो हमने चेंजेस किए थे उसके बारे में हम आज थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे. दिसंबर का जो महीना था उसमें वी कंटिन्यूड द एक्यूमुलेशन फेज, बट द ओनली डिफरेंस वाज वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में हमने किया था. नवंबर के महीने में जब मैंने आपसे लास्ट बात की थी तब वी वर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट टेक्निक, स्टिल ट्राइंग टू बिल्ड अ बिग बेस. लेकिन दिसंबर के महीने में आते आते द इंटेंसिटी ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज स्लाइटली इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ रेप्स slightly increased. अगर हम sprinting की बात करें, now I was actually doing some tempos, for example, let's say 300 repeats, जिसका पेस थोड़ी सी, जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई थी. या फिर अगर मैं स्प्रिंटिंग की बात करूं तो वहां पे भी जो भी हम एक्टिविटी कर रहे थे उसमें हमारा गोल था कि नवंबर के महीने से दिसंबर के महीने में भी अप द इंटेंसिटी बाय जस्ट इनफ टू वेयर इट स्टिल फॉल्स अंडर एक्यूमुलेशन, जिसका मतलब है कि हम उस एक्टिविटी को ज्यादा बार दोहरा पाए and without trying to get too caught up in trying to hit 90%, 95% intensity, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे उतना आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप इंजरी रिस्क कर जाते हैं. As we moved into January was something of a transitional sort of a month. Transition phase में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज आप accumulation phase में कर रहे हैं वो slightly change हो जाते हैं. In the sense, the whole idea of December or accumulation is we want to try and build our work capacity, we want to try and build technique, we want to prepare the body for the rest of the season, what's coming in front of us. The neural demand, जो भी आपके एक्टिविटी का neural demand होता है, that's usually that tends to go down, or it's lower in nature as opposed to when you're in the transition phase, the neural demand on your body is high. A lot of the times that's attributed to the fact that when your intensity is high, your neural demand is also high. But the grand scheme of things, the important objective of the month of December was to try and build a base, get stronger, get fitter, I guess prepare your body to be able to handle all the activities that it's supposed to do in the month of January. जब हम बोलते हैं कि भाई ऑफ सीजन ट्रेनिंग करेंगे तो ऑफ सीजन ट्रेनिंग का भी एक प्लान होता है. आप 2-2.5 महीने से ज्यादा ऑफ सीजन नहीं कर सकते. तो जो लोग 6-6 महीने 7-7 महीने ऑफ सीजन करते हैं, I'd like to let you know कि प्लीज वो आपको कभी काम नहीं करेगा, बिकॉज at that point you're just breaking your body down and there's no repair that's happening, or there's no change in stimulus. जब तक change in stimulus नहीं होगा तब तक आपका बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा उस लोड के लिए. तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चीज में बिलीव करते हैं कि हम 6 महीना ऑफ सीजन करेंगे और उसके बाद हम एशियन गेम्स में अच्छा करेंगे, सॉरी, आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, वो नहीं हो सकता. नाउ कमिंग बैक टू जनवरी एंड फेब्रुअरी विच इज अ ट्रांजिशन मंथ, उसमें हमने जो भी बेस वर्क किया, जो भी बिल्ड किया, उसको हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की. वी कन्वर्टेड दैट प्रिपरेशन इनटू परफॉर्मेंस. हाउ डज दैट लुक लाइक? वेल, you try and get a little bit more specific in your activities. So for example, my 300s will probably start looking a little bit more similar to my race. So जैसे कि अब indoors I'm running the 1 kilometer because the 1 kilometer is part of the heptathlon. So a lot of my races or a lot of my running workouts will be 1 kilometer simulation, क्योंकि मैं उस रेस को भागने की कोशिश कर रहा हूँ. So now I'm getting more specific into the demands of that particular event. Neural demand जो है वो ऊपर जाएगा, तो मतलब हमें थकान ज्यादा हो सकती है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज्यादा टायर्ड हो सकता है. बट क्योंकि न्यूरल डिमांड आपका ऊपर जा रहा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द लोड और द वॉल्यूम एट दिस टाइम स्लोली रिड्यूसेस. व्हाई दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट इज, आपने नवंबर दिसंबर 2 महीने जब अक्यूमुलेशन फेज में ज्यादा लोड ज्यादा वॉल्यूम किया है, तो दिस काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ नेचुरल रेस्ट टू योर बॉडी, बिकॉज नेचुरली इफ यू डोंट रिड्यूस द लोड एंड इफ आई जस्ट कीप बिल्डिंग, अगर मैं ऊपर जाता रहता हूँ तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं बिल्कुल ही टैंक कर जाऊंगा, और वो पॉइंट होगा फरवरी का महीना, मार्च का महीना. बट मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज वहीं पे मेरा एशियन इंडोर चैंपियनशिप्स था, या फिर यदि वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप्स आ जाता है. सो दोज आर द टाइम्स व्हेन यू वांट टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. बहुत एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि आप साल में एक ही बार पीक कर सकते हैं, और इस साल क्योंकि एशियन गेम्स अक्टूबर में है तो अगर मैंने जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो फिर अक्टूबर में क्या होगा.
वेल द रीजन फॉर दैट इज समुंदर की लहर होती है, वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाती, बिल्कुल नीचे नहीं जाती, वो ऊपर नीचे करके जाती है। तो वैसे ही अब क्योंकि हमारा वॉल्यूम यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में ऊपर था, ट्रांजिशन में आते आते इट्स गोना गो डाउन। वंस आई एम डन विथ माई इंडोर सीजन, all of this is going to change and start looking more like December January prep or November December prep, and by the time I get to the month of April I'm probably going to go back into this. तो मैं इस wave को बार बार ride करने की कोशिश करूंगा, going back to accumulation, going towards transition, and then eventually by the time we get to October or by the time we get to July for the Commonwealth Games, वहां पे हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल ही चेंज होके हम ज्यादा जो ट्रेडिशनल पीकिंग स्टाइल एक्टिविटीज होती हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। ओके गाइस, सो विद दिस वी काइंड ऑफ लर्नड व्हाट आई डिड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। नवंबर दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी अलग कैसे था और हमने कैसे अपने ट्रेनिंग में ग्रो किया, यू नो द प्रोसेसेस दैट वी सेट फॉर आवरसेल्व्स व्हिच ऑब्वियसली bore some good results in the month of February at the Asian Indoor Championships, and the fact that I was able to perform at a high level in my transition phase shows कि जो अभी तक हमने प्रिपरेशन किया है वो एक सही डायरेक्शन में गया है, and this is more like a check mark to see कि भाई आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही चीज है, and then we are on the right track rather than think कि चलो मेरा पीक आ गया and then you know I don't know if I can sustain till July or August। इस वीडियो से मैं यही आपको एंकरेज करूंगा कि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो बस एक चीज जिसका ध्यान सबसे ज्यादा रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि मोनोटनी इन ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए। मोनोटनी का मतलब ये होता है कि आप एक ही ट्रेनिंग पैटर्न को करते रहें और उसमें बस आप लोड और इंटेंसिटी को ही बदलते रहेंगे तो सिर्फ उससे ही आप परफॉर्म करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू हैव टू चेंज द जोन, you have to understand which phase your training is in, and that is where we have to make those changes, and we have to make sure that we give our body adequate rest after a heavy training cycle, or we change the phases in order to perform at a very high level and make sure that you know we move the pieces of the puzzle exactly the way we are supposed to, so that we can perform at a high level when it actually matters. So thank you so much and see you in the next episode.